everyone. My name is Mandira. Welcome to AglaSem, and today we are going to be doing Class 12, Chapter 8, Psychology and Life. So in this chapter, we are going to study how psychology can be applied to common problems in our lives, how we can appreciate the relationship between human beings and environment. So there is a lot about physically जो हमारा environment है, the pollution levels, the air quality, the crowding, whatever environment, man-made part of whatever we are living in nature, that we can say, how that affects us, how that affects our mental health, our well-being, okay? And of course, we're going to explain the causes and consequences of social problems in the second half of the chapter. We're going to learn about poverty, discrimination, various social factors that play a big role in the psychological well-being, psychological functioning of a human being, okay? And of course, we're going to finally learn about the remedies of problems such as poverty, aggression, even जो हमारे environmental problems and what we can do to make it better. We're going to learn about those remedies as well. So let's get started with chapter number 8, Psychology and Life. So the first heading in this chapter, the main heading is that of human-environment relationship. इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. Basically, the environment around us influences our physical health, psychological health, and obviously some of this also produces stress. Some of this is stress relieving. कहते हैं ना कि if you go out for a walk, then that is great for your stress levels. अगर आप 30 minutes बाहर every day you go out for a walk and then come back again, then that's great because your mind is going to get fresh after that walk. ठीक है. Similarly, we have also heard examples like pollution levels बहुत high हैं, इसलिए stress levels ज़्यादा हैं, इसलिए हमारा productivity कम हो गई है, या लोग ज़्यादा जल्दी age करने लग गए हैं, mentally उन लोगों की exhaustion जल्दी हो जाता है. All these kinds of things we keep hearing, okay? So in this, we are all talking about the human-environment relationship only, कि how our environment is affecting us, ठीक है? So obviously, pollution, as I talked about, can influence psychological levels and functioning. Environmental psychology is basically this branch that deals with various psychological issues pertaining to human-environment interaction in a very broad sense of term. So, आपने अभी बहुत discussions सुने होंगे, especially for people living in Delhi, that high levels of pollution in Delhi can hamper all sorts of physical health, aspects of our physical health, aspects of our mental health, etc. तो इस ब्रांच को जो डील करते हैं, जो मेंटल हेल्थ को डील करेंगे, वो हाउ इट इंटरेक्ट्स विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स अराउंड अस, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज कॉल्ड एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. ठीक है. द वर्ड एनवायरमेंट हमने पहले भी पढ़ा है, इन वेरी थर्ड फोर्थ में भी हमने पढ़ा है. इट रेफर्स टू ऑल दैट इज इन एंड अराउंड अस, including the physical, social, work and cultural environment. तो कहते हैं ना, इस कंपनी का environment कैसा है, या इस जॉब प्रोफाइल में कैसा environment है, that is what we are talking about. ठीक है, कि कहीं का भी environment, आप जो फूल पत्ते हमारे आसपास leaves वगैरह हैं, वो तो they are definitely part of the environment, but also another additional thing that is part of the environment is where you're working, or your school environment. ऐसे use करते हैं ना, man-made part of the you can say it's kind of like culture but a bit different. ठीक है. So अब हम आते हैं इस पे इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड पीपल पे. तो जो नेचुरल एनवायरमेंट है, द पार्ट ऑफ नेचर विच रिमेन्स अनटच्ड बाय ह्यूमन हैंड, इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरमेंट. फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी ऑफिस में काम करने जाते हो, देन वहां का वर्क एनवायरमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय ह्यूमन बींग्स, बट द नेचुरल एनवायरमेंट जो है, अनटच्ड जो है हमारे ह्यूमन से, उनको कहते हैं हम नेचुरल एनवायरमेंट. ठीक है. अच्छा, बिल्ट एनवायरमेंट क्या होता है? सिटीज, हाउसेस, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा, रोड्स, डैम्स, है ना, ये सारी चीजें. तो जो built environment है, usually involves the concept of environmental design. The idea of design contains some psychological features. For example, creativity of the human mind. अब आप देखते हो कि कितने तरीके के हाउसेस बने हुए हैं. ठीक है, कहीं पे आप जा रहे हो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस बना है, सो बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है, मॉन्यूमेंट्स, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ द ह्यूमन माइंड. किसी ह्यूमन ने ही बनाए है ना ये. सो दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ किसका? बिल्ट एनवायरमेंट, क्योंकि हमने खुद बनाया है, एंड ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिएटिविटी, विच इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ बिल्ट एनवायरमेंट. द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ बिल्ट एनवायरमेंट इज द सेंस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल. ऑब्वियसली हम लोग डैम्स बना रहे हैं टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर्स. हम लोग लाइक आपने कभी देखा होगा, इन सर्टन पार्ट्स ऑफ दिल्ली वेयर द पोल्यूशन इज एक्चुअली प्रीटी हाई, देयर आर ट्रक्स दैट आर showering that area with water sprinklers so that the pollution level reduces. This is again a sense of human control. हम pollution को कम कर सकते हैं, या by not driving, by switching off our vehicles at the red light, all these kind of things, by not using CFCs, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम environmental pollution को कम कर सकते हैं. This is the human control aspect.
And the third feature of built-in environment is the influence on the kind of social interaction that takes place in the designed environment. ऑब्वियसली जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो हमारे ऑफिसेस बिल्ट है या हमारे घर बिल्ट है उसके अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, दैट ऑल्सो वी कैन कंट्रोल. ठीक है, तो इन्फ्लुएंस ऑन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन. ठीक है, तो हमारी जो ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है इसमें बहुत सारे डिफरेंट व्यूज हैं एंड आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दोज व्यूज इन अ बिट शॉर्ट नाउ. ठीक है, तो लेट्स गेट ऑन टू द डिफरेंट व्यूज विच इज द नेक्स्ट सब हेडिंग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं मिनिमलिस्ट पर्सपेक्टिव. इसमें क्या होता है, इट अज्यूम्स दैट फिजिकल एनवायरनमेंट हैज अ मिनिमल और नेग्लेजिबल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर, हेल्थ एंड वेलबींग. द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट एज पैरेलल कंपोनेंट्स. So this is the school of scientists, so school of psychologists that believe कि हमारे environment के आसपास का pollution levels का या हमारा work environment जो है etc. उस पे हमारी physical और mental health का कोई relationship नहीं है, उनका कोई influence एक दूसरे पर नहीं होता, या especially environment का हमारी mental health और physical health पे नहीं होता. They are parallel, मतलब वो अलग है, environment अलग है, mental health हमारी अलग है. ठीक है, then there is the instrumental perspective, suggests that physical environment exists mainly for use by human beings for their comfort and well-being. Most of the human influences on environmental reflect the instrumental perspective. मतलब कि जैसे कि आप ये देखो कि हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, सो क्रॉप्स को देन वी कट देम एंड वी ईट देम. सो दिस इज द काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दैट थिंक्स कि जो एनवायरमेंट है हमारे आसपास का दैट इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर ह्यूमन बींग्स. दैट मीन्स human beings are superior than all the things that are in our environment, and we have the right to use the things in our environment as much as we want. For example, another example of environment use might be कि आप जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें there are cows, chickens, mutton, जो हमारा ये होता है मटन जो हम प्रोडक्शन करते हैं, बीफ प्रोडक्शन है या चिकन प्रोडक्शन है इन टर्म्स ऑफ फूड, वो दैट इज ऑल्सो फॉर आवर यूज. या फिर काउ का मिल्क इज ऑल्सो फॉर आवर यूज. तो हम अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट या यूज कर सकते हैं. दिस इज दैट पर्सपेक्टिव. Then there is the spiritual perspective, which refers to the view of the environment as something to be respected and valued rather than exploited. So here it talks about that there is no logical sense as to why we have the right to exploit the environment around us. So these people, spiritual perspective wale log, they say that actually you have to live in harmony with the environment. You have to give back to the environment as well as use a little bit. So it is something to be valued. It is something to be, respected, not just कि आप उसको यूज कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग दैट यू हैव द एंटाइटलमेंट एंड द राइट टू एक्सप्लॉइट द एनवायरनमेंट एज मच एज यू लाइक. ओके, सो ये जो है ये जो 3 व्यूज मैंने आपको बताए, साइकोलॉजिस्ट नेम स्टॉकल्स, इन्होंने ये 3 अप्रोचेस डिस्क्राइब करी थी. द अदर अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज द ट्रेडिशनल इंडियन अप्रोच. इसमें क्या है, द एनवायरनमेंट सपोर्ट्स द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव. तो जो हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव है, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ा होगा दैट हम लोग बोलते हैं ना मदर अर्थ, एंड जो हमारी इन्वायरमेंट है, जो फॉर एग्जाम्पल द जो हमारे रिवर्स हैं, है ना, यमुना रिवर, गंगा, द गैंजेस, एज आई सेड, ये हमारी मदर फिगर्स इन आवर mythology, in our literature. So obviously we support the spiritual perspective. Why? Because we don't want to take more from the environment than we give, right? We don't want to exploit the environment. You can say that instrumental perspective जो है, that is a bit of Western perspective, especially in the United States. But now spiritual perspective is gaining a popularity, and also because we have actually exploited the environment to the extent that we don't have any other option. So everyone in the world is now following, so there is a trend that everyone is following the spiritual perspective, which is the Indian traditionalist perspective also. ठीक है, for example, the customs of Bishnoi community in Rajasthan, the Chipko movement, you must have heard about the Chipko movement. Sundarlal Bahuguna, very 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 famous and worldwide recognition मिला है, where they would hug the trees and not let the industrialists and the anti-environmental people chop them off. ठीक है, अब आते हैं environmental effects on human behavior पे. ठीक है, विच इज आवर नेक्स्ट मेन हेडिंग. ओके, इसमें हम 3 चीजों की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन परसेप्शन. ओके, so for example, a tribal society of Africa lives in circular huts, that is in the houses without triangular walls. They show less error in geometrical illusion. अच्छा, तो हमारा जो परसेप्शन है, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था हमने, आई थिंक, हाँ, क्लास 11 के. सो जो हमारी परसेप्शन होता है, मतलब कि हाउ द इंफॉर्मेशन दैट एंटर्स आवर ब्रेन इज इंटरप्रेटेड. ओके, दैट इज द परसेप्चुअल पार्ट, कि हाउ द ब्रेन इज इंटरप्रेटिंग.
तो how the mind is interpreting the information. तो ऑब्वियसली अगर हम लोग स्क्वायर हाउसेस में रहते हैं, आवर परसेप्शन विल बी डिफरेंट फ्रॉम पीपल हु स्टे इन राउंड हाउसेस. तो इसमें ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो सर्टेन अफ्रीकन कम्युनिटी स्टे इन राउंड हाउसेस और उनका परसेप्शन हमसे काफी डिफरेंट होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट वी कम टू इमोशंस. सॉरी, हाँ, इमोशंस पे आते हैं. तो इमोशंस में क्या है कि हाउ द इन्वायरमेंट अफेक्ट्स आवर इमोशनल रिएक्शंस as well. ठीक है. Watching nature in many form provides us kind of joy that cannot be matched in any other kind of experience. They experience तो जो natural disaster से लोग जो गए होते हैं, they have been through, they process deep, they experience deep depression, sorrow, sense of helplessness और PTSD even sometimes. तो इसमें ये बात हो रही है कि how emotions are affected by the environment. Again, I give you the example in the starting of the chapter कि go out या फिर हम hill stations पे जाते हैं to refresh ourselves, कि every 3 or 4 months we want to go for a vacation either on a beach or a hill station or a forest. You must have heard of Jim Corbett. So one of my favorite vacation destinations whenever I go there, because there you can be in the nature without any disturbance. There are less Wi-Fi signals there, so you can reconnect with the nature. You can watch animals, you can go on safaris, you can do lots and lots of things. ठीक है. तो वहां पर obviously there that is connected to our emotions, that when we go there we refresh ourselves, हमारा mind calm हो जाता है, and we sort of think कि चलो अच्छा है, there is some sort of break in the monotony of life, right? So obviously environment is affecting our emotions. The third, we are going to talk about ecological influences in occupation, living style and attitudes. ठीक है. इसमें क्या है? Occupation determines the lifestyle of attitudes of the residents of cooperativeness, obviously. So they are also closer to the nature, more dependent on natural events and limited supply. अब हम लोग urban areas में रहते हैं, तो we actually have to, I mean in Delhi I think it's a bit better, but in Bombay if you see, चलो वहाँ पे beach है, but greenery is almost है ही नहीं. So in Delhi there's bit better, but the pollution levels are so high. So all these urban cities, Bangalore में तो there is so much traffic, hardly you have the time to look out of the window and look for a tree or some sort of natural beauty there. But in urban areas we are not that much dependent directly on nature, right? We are doing things that are urbanized in the sense that अब देखो मैं ये video record कर रही हूँ, so I'm using a camera, I'm using a light. My livelihood is not directly dependent upon the nature, except for obviously I'm a human being and I eat vegetables and I breathe oxygen. But it could be more related if I lived in a rural area where I could actually be a crop farmer. तो मेरा पूरा दिन ही nature के साथ interaction में गुजर जाता. ठीक है. This is what this is talking about. उसमें आपका living style, आपका attitude, obviously the way they will care about nature, it's very difficult for an urban person to care about nature as much. You can, but obviously it's a bit difficult. ठीक है. Okay, so अब हम आते हैं human influence on the environment, which is our next sort of topic. तो अभी हम पढ़ रहे थे environmental influence on humans. अब हम पढ़ेंगे human influence on environment. ठीक है. Next topic. Human beings also exert the influence on natural environment for fulfilling their physical needs and other purposes. अब आप देखोगे कि mostly environment तो हम पे positive influence डाल रहा है, लेकिन जो हम influence environment पे डाल रहे हैं human beings, that is mostly negative in nature. Okay, so obviously some actions humans commit harm and damage the environment and ultimately harm themselves in numerous ways. ठीक है. अब हम ही वी आर लिविंग इन पोल्यूटेड एरियाज, या फिर आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, या हम लोग की जो समर विंटर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा समर होना ज्यादा विंटर होना, ऑल दिस इज व्हाट, ऑल दिस इज बिकॉज हमारा वो हो रहा है, बिकॉज वी हैव caused that much pollution, we have contributed to global warming, all these kind of things. ठीक है. तो हम खुद को भी in a way harm कर ही रहे हैं. अच्छा, एग्जाम्पल्स में क्या होता है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंस के. फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स जो हम यूज कर रहे हैं, दे जनरेट CFCs क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ठीक है. इट्स वेरी बैड फॉर द इन्वायरमेंट, स्पेशली ओजोन लेयर के कॉन्टेक्स्ट में आपने बहुत पढ़ा होगा. ये स्प्रेज वगैरह में भी होता है. ठीक है. CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ओके. हम लोग स्मोकिंग, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू पोल्यूट द एयर अराउंड अस. स्मोकिंग मतलब कार से भी स्मोकिंग, और हम लोग जो सिगरेट पी रहे हैं वो भी. इंडस्ट्रीज दैट डिस्चार्ज एफ्लुएंस टू पंप अनट्रीटेड सीवेज into rivers seem to be unconcerned. जो हमारी basically the majority of pollution that is being caused due to the industries, वो water pollute कर रहे हैं, air pollute कर रहे हैं. ठीक है. Obviously noise pollution, crowding, natural disasters are some of the examples of environmental stresses. अब हम इन सब जो हमने examples पढ़े हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे.
ठीक है. So let's come to the first subheading under this topic, which is that of noise. तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि how we have, how noise can contribute to our problems. तो सबसे पहले हम noise का कर लेते हैं. हाँ जी. तो any sound that is annoying or irritating and felt to be unpleasant is said to be a noise. अब if you're listening to someone play the flute, it's probably not noise, it's a beautiful sound, right? लेकिन any voice that is irritating or annoying, जैसे कि फैक्ट्री में जो मशीनों के चलने की आवाज होती है, that is very annoying, है ना? So it does put you in an unpleasant mood because it is an unpleasant sound. ठीक है? It may lead to hearing loss. अगर बहुत तेज आवाज में someone is playing certain kind of things, या मशीन की क्रैकलिंग बहुत ज्यादा है, if you have ever, I mean I hope you have not, but if you have ever gone for a CT or an MRI, you have to like see कि वहां पर MRI में इतनी तेज noise होती है magnets की that you will, that is exactly it's a very prototypical example of noise for me, because I've gotten an MRI done once and oh my god, more than my head actually, जो मेरे को problem थी MRI की magnetic sounds की वजह से I was getting disturbed. Okay, so effects of noise बहुत सारे होते हैं. Systematic research on the effects of noise have been obviously studied. ठीक है. अच्छा, 3 characteristics भी पढ़ लेते हैं noise की. Intensity, predictability and controllability. Intensity मतलब कि कितनी जोर से या कितनी धीरे है वो noise. बहुत जोर से है तो then will get more irritated. Predictability मतलब अगर आपको पता है कि for example बाहर कोई बहुत शादी वादी हो रही है, 3-4 घंटे तो डीजे चलेगा ही, देन इट्स बेटर देन अनप्रेडिक्टेबल नॉइज. उससे हम ज्यादा इरिटेट और शॉक हो जाते हैं. ठीक है. I think a good example of this is also crackers that people burn on Diwali. I hate the noise of those crackers, and I think it's very unpredictable कि कौन सा बॉम्ब कब फटेगा, so it's even more annoying. I've always been scared of it. Controllability क्या होती है कि आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो. यानी अब अगेन आप डीजे की साउंड को बाहर कम ज्यादा नहीं कर सकते, पटाखे की साउंड को भी आप कम ज्यादा तो नहीं कर सकते, but obviously you cannot burn crackers and just avoid that noise. So that you can do. So हम करते हैं अब थोड़ी सी effects of noise के examples. अच्छा, first of all the task being, अगर हम लोग जो इफेक्ट हमारी नॉइज की है, ठीक है, उसके एग्जांपल्स इन द सेंस कि हम देखते हैं कि किन सिचुएशंस में हमको वो नॉइज ज्यादा इरिटेट करेगी, ज्यादा इफेक्ट करेगी और किन सिचुएशन में कम करेगी. ओके. When the task being performed is a simple mental task such as addition of numbers, noise does not affect overall performance. आप कभी ना ट्राई करना कि if you are doing cleaning वगैरह आप कर रहे हो तो नॉइज शायद आपको इतनी डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन आप कभी ऐसा ट्राई करना कि ट्राई रीडिंग अ स्प्रेडशीट. एक्सेल में कोई भी एक स्प्रेडशीट को रीड करके और उसको प्रूफ रीड करने की कोशिश करना when some noise is going on. It's very irritating and you cannot do it because बहुत concentration चाहिए उस टास्क में. ठीक है. Obviously if the task being performed is interesting, then presence of noise does not affect the performance. ठीक है. तो आप बहुत ही बोरिंग टास्क कर रहे हो, then probably it will irritate you even more क्योंकि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे. Then if the noise comes at intervals in an unpredictable way, then it is very disturbing. Again, as I said, कि पटाखे की voice, that it's very irritating because it comes at a very unpredictable interval. कभी कोई फट जाएगा, कभी, especially in a लड़ी, if you have seen, this is like a big I think a range of firecrackers that are put together in a very को पता ही होगा, लड़ी, everyone knows that. So टास्क अच्छा, अगर टास्क इज डिफिकल्ट देन ऑल्सो इट्स वेरी इरिटेटिंग टू डू इट. एज आई सेड, वही अगर सिंपल मेंटल टास्क है तो नहीं. When tolerating or switching off the noise is within the control of a person, number of errors in task performance decreases. So if for example some people put music in their ears, and even though that sometimes मैं देख रही होती हूँ, I'm observing students that बहुत हार्ड रॉक मेटालिका म्यूजिक सुन रहे होते हैं and they are doing they are studying and they are doing calculations and everything, but if obviously they like that music, great. And अगर उसका you can control it, you can reduce the volume, increase the volume, then performance आपकी ज्यादा accurate होगी. So in terms of emotional effects, noise जो होती है that can at a certain level can cause annoyance and also lead to sleep disturbance. अगर आपके यहाँ रात को कोई फंक्शन इधर उधर हो रहा होगा, you must have experienced this. ठीक है. नेक्स्ट लेट्स कम टू पोल्यूशन, विच इज आवर नेक्स्ट सब हेडिंग. ओके. पोल्यूशन तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स लिविंग इन दिल्ली यू मस्ट नो व्हाट द इंटेंसिटी. हम लोग हमेशा एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करते रहते हैं एवरी सेकेंड डे. सो ऑब्वियसली इट कैन बी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन. ठीक है. So there are some research or study that has shown that direct or indirect psychological effects of pollution can be harmful as well, direct या indirect दोनों तरीके से.
और स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन हैव बीन रिपोर्टेड बाय सम रिसर्चर्स आल्सो. एयर पोल्यूशन का पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज आल्सो अगेन एज आई सेड कि हम इफ यू आर लिविंग इन एनी काइंड ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी देन अगेन सो ग्रेटर टेंशन एंड एंजाइटी. फर्स्ट पॉइंट हमारा कि अगर बहुत हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन होता है, स्ट्रेस होता है, इट कैन कॉज ग्रेटर टेंशन एंड एंजाइटी. ठीक है. Obviously it can decrease the ability to concentrate on a task and lower performance efficiency. आपका concentration और performance efficiency directly pollution level से कम हो जाता है. अच्छा, disturbance is memory and attention and alertness. ठीक है. अगर कोई स्पेशली विशियस गैस अगर आपके अराउंड है, जैसे इन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी का एग्जाम्पल डिस्कस किया है, अगर आप बहुत ही एक एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक गैसेस अराउंड यू, देन आपको मेमोरी, थिंकिंग और अटेंशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है. दैट्स व्हाई व्हेन पीपल आर इन सच ट्रेजेडीज, उनको उस कंटेनमेंट एरिया से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है. ठीक है, बड़ी मुश्किल होती है बिकॉज योर हेड इज नॉट वर्किंग राइट इन द टॉक्सिक लेवल ऑफ पोल्यूशन. ठीक है. इट कैन ऑल्सो टोबैको स्मोक पोल्यूशन, दैट इज पोल्यूशन थ्रू सिगरेट, बीड़ी, can cause psychological effects. aggression levels बढ़ जाते हैं and it is also highly addictive, तो आपकी mental health के लिए वैसे भी बुरा है. बट कहते हैं ना second hand smoke से भी, if not you but any of your family members is smoking around you, then actually they are putting you at as much risk as they are putting their own self, because second hand smoke जो उनके they are releasing after smoking, even though you are not taking the smoke directly in, अगर आप उनकी वो smoke में breathe कर रहे हो, then that can also cause a lot of increase in aggression levels, increase in irritability. Okay. और obviously certain chemicals की वजह से mental retardation भी हो सकती है. So अगर जैसे आप किन्हीं रशियन सब सिटीज वगैरह में जाओगे, यू विल फाइंड दैट वहां पर टॉक्सिक केमिकल्स एंड पोल्यूशन की लेवल इतनी ज्यादा है दैट द नेक्स्ट जनरेशन इज एक्सपीरियंसिंग इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी और मेंटल रिटार्डेडनेस. ठीक है. और वेस्ट इन प्लास्टिक टिन, मेटल कंटेनर, ये सारा जो वेस्ट है ऑब्वियसली शुड बी डिस्ट्रॉयड यूजिंग अ सर्टेन टेक्निक, बट देन स्मोक शुड नॉट बी अलाउड टू एस्केप. आप यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड once or twice दैट पराली जल जाती है हमारे यहाँ when farmers from Haryana or the surrounding sites, they have to burn their crop. उनको जलानी पड़ेगी, it is for the survival, but it also affects the incoming pollution in Delhi NCR and it makes it very toxic to breathe here. Okay. So this was pollution. Let's come to the next heading, which is that of, again under this topic only, which is that of crowding. Again, living in the Indian subcontinent, हमको अच्छे से पता है कि ये crowding का क्या impact होता है. Obviously, there is a feeling of discomfort, loss of decrease in privacy, negative view of space around the person, and loss of control over social interaction. अब क्या है कि ज्यादा लोग हैं, that is also a problem. But another problem that the density actually is making the crowding even worse. मतलब अगर ज्यादा लोग हैं तो it's fine if they are distributed over a large mass of land, but if there are more people than the land, right? Density ज्यादा है, amount of space is less, number of people is more, then crowding is actually even worse. That's when it starts to affect you. ठीक है. It can lower your performance on difficult tasks, वही सेम जैसे पोल्यूशन वाला एंड हमारा नॉइस का एग्जाम्पल था. वीकर टेंडेंसी टू कंटिन्यू, जो हमारी लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस में हो जाती है. कहते हैं ना क्लास में 60 बच्चे हैं, so there are 60 children in the class, how will the teacher focus, what will the students learn, है ना. डेंसिटी ज्यादा है पर क्लास में, तो उसमें हमारी वीकर टेंडेंसी टू कंटिन्यू स्टडीइंग, कंटिन्यू वर्किंग. ठीक है. ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट हम लोग फेस करते हैं इसकी वजह से. अच्छा, क्राउड टॉलरेंस, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, उनको हम फटाफट करते हैं. Crowd tolerance क्या होता है? Refers to the ability to mentally deal with high density of crowded environments such as crowded resilience. जैसे अगर आप, if you've ever been in the local or the metro or any kind of public transportation around you, you know what crowd tolerance is. Every day, first day आप जाओगे metro में around 8 to 9 p.m. Oh my god, the crowd is like literally killing you on the first day. But then, I mean, I used to go every day at one point, so it just became like a normal thing. Thoda sa side ho jao and let the whole crowd at Rajiv Chowk crush you. That's great. So that kind of tolerance develops. Okay. Next is competition tolerance, ability to put up with the situation in which individuals have to compete with many others for basic resources. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कॉलेज एजुकेशन. दैट कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई है बिकॉज द नंबर ऑफ सीट्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. सो एवरीथिंग बिकम्स कम्पिटिटिव. कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में आपको गवर्नमेंट जॉब लेना, इट्स वेरी कम्पिटिटिव बिकॉज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ओके. Then cultural characteristics may determine the extent to which a particular environment may be judged to be subjectively more crowded or less crowded. ठीक है. तो to determine the extent मतलब कि in which a particular environment may be judged, मतलब कितना आप एक environment को judge कर सकते हो to be more crowded or less crowded.
ठीक है, दैट इज अ कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक। पर्सनल स्पेस तो ऑब्वियसली अगर बहुत क्राउडेड है तो आपका पर्सनल स्पेस कम रहेगा, ठीक है। इफ यू हैव सीन इन लोअर इकोनॉमिक सेक्शंस, वो लोग बेचारे एक ही घर में दे आर 6 or 7 members staying in a 1-bedroom apartment or in a 1-bedroom खोली, so that is very पर्सनल स्पेस का कोई स्कोप नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे कोरोना टाइम्स में आपको पता ही होगा कि डिस्टेंसिंग का कितना इंपॉर्टेंस रहा है, तो यहाँ पर 4 टाइप की डिस्टेंसिंग डिस्कस करी गई है। इंटीमेट डिस्टेंसिंग क्या होती है? अप टू 18 इंचेस, मतलब डिस्टेंस यू मेंटेन व्हेन यू आर टॉकिंग प्राइवेटली टू समवन, प्रोबब्ली द डिस्टेंस आई हैव टू द कैमरा इज इट्स प्रीटी इंटीमेट। फिजिकल डिस्टेंस क्या होता है? 18 इंचेस टू 4 feet, the distance you maintain when you are interacting with one-on-one with a close friend, relative, or even with someone you are not very close, मतलब कितना एक टिपिकली आप जिनसे कितना पास आके बात करते हो, थोड़ा सा some gap between you, but ज्यादा नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो हमने कोरोना में बहुत अच्छी सुनी है, 10 feet का दूरी, we have heard a lot of those messages on our phones. So distance you maintain when interaction is formal and not close, so probably the distance you maintain with your boss when you talk, ठीक है। Public distance क्या होता है? You maintain in a formal setting when there are a large number of people. So if you've I think ever been to a wedding, that is a good example of public distance, of obviously with people you don't know, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेचुरल डिजास्टर्स का। So natural disasters, it is our final topic when it comes to this half of the chapter. इसमें क्या है? Environmental stresses such as noise, और ये सारे जो हैं ये तो human behavior का result है, लेकिन disasters जो होते हैं they cannot be prevented, usually come without warning and result in intense damage to human lives and property. They can cause post-traumatic stress disorder. ठीक है, if you have been through any kind of flood, tsunami, earthquake, where you've lost loved ones, you've lost your neighbors to the natural disaster, then obviously it can trigger stress disorder, which is that of post-traumatic stress disorder, ठीक है। अच्छा, तो इसमें इतना तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर गई है कि थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक्स को या कुछ नेचुरल डिजास्टर्स को, बट ज्यादा नहीं। सो फीचर्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं। इमीडिएट रिएक्शन is commonly one of disorientation. People take some time to understand what the meaning of disaster that has done to them. They may actually deny themselves that something terrible has happened. अगर किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है किसी डिजास्टर में, then it will take time for them to process कि इस earthquake में how many of your as I was saying कि not just your loved ones but कितने आपके पड़ोसी, कितने friends, कितने people that you just used to see you have lost. फिजिकल रिएक्शंस आर फिजिकल हमारी जो स्लीप में चेंजेस, ईटिंग पैटर्न में चेंजेस, एंग्जाइटी होना, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ना और हार्ट बीट बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ऑल दीज आर फिजिकल रिएक्शंस। इमोशनल रिएक्शंस, रोना, इरिटेबिलिटी, एंगर, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, डिप्रेशन, समथिंग दैट इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ इमोशन भी, कभी कभी ब्लंट हो जाता है बंदा, इमोशनली नंबिंग जिसको कहते हैं ना। Cognitive reactions are difficulty in concentration, reduction in attention span, loss of memory, all this. Okay. Social reactions is withdrawal of self from others, getting into conflict with others, having frequent arguments with your loved ones, feeling rejected or left out. ठीक है. So कुछ measures हैं that we can take in order to help ourselves during disasters. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वार्निंग सुन सकते हैं रेडियो में, या फिर टीवी पे हम वार्निंग सुन सकते हैं, उसके लिए अपने आपको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली साइक्लोन आया था इन बैंगलोर एरिया, साउदर्न एरिया में आया था, तो उनको वार्निंग दे दी थी, इसलिए दे वर मच प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स कैन बी टेकन ऑब्वियसली, जिसमें आप एक किट बना सकते हो अपनी डिजास्टर किट। ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इंक्लूड सेल्फ हेल्प प्रोसेसेस, अगर आप किसी डिजास्टर से यू हैव बीन थ्रू देन यू कैन ऑब्वियसली सीक प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। So you can do pro-environmental behavior, obviously includes both actions meant to protect the environment from problems and to promote healthy environment. Reduction in air pollution, as I said, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गाड़ी कम अपनी चलाना या रेड लाइट पे ऑफ कर देना, CFCs को रिड्यूस करना, नॉइज पोल्यूशन, क्रैकर्स बर्न नहीं करना, और जोर से डीजे नहीं बजाना, disposal of garbage in a sensible way. You have to watch one of those videos where they are discussing ki a lot of people have only one can of garbage in the entire year and they have recycled literally everything else. That's a great idea. Planting trees, saying no to plastic, reducing non-biodegradable packaging, and laws related to construction. Okay? And now we will read more about the psychology and social concerns वाली जो main heading है, उसके अंदर सब heading of poverty and discrimination. This is more of कि
how how we have created the social structures around us that can also affect our mental well-being. ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले पॉवर्टी की. पॉवर्टी क्या होता है? इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज लैक ऑफ नेसेसिटीज इन लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी. मतलब जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज हैं आजकल, दैट देयर इज नो अपर लिमिट टू हाउ मच यू कैन अर्न एंड देयर इज नो लोअर लिमिट ऑल्सो. तो इट इज इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, and it is a condition in which the lack of necessities in life in the context of unequal distribution also. ठीक है, मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, किसी के पास बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं. सो ये हमारी एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज की बहुत बड़ी टेंडेंसी है. ठीक है, a distinction between deprivation and poverty. Deprivation और poverty में क्या फर्क होता है? That refers to the state in which a person feels that he or she has lost something valuable and is not getting what he or she deserves. That is called deprivation. ठीक है, तो in deprivation it is more the question of perceiving or thinking that one has less than what we should get. अब जैसे कि we are all privileged enough to have a phone through which you are accessing this video. I have the privilege to have a psychology book, a camera, a light. ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या लगता है कि मैंने जितनी मेहनत करी थी ना मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस हिसाब से कॉलेज मेरे को नहीं मिला, या मैंने जितनी मेहनत की थी मेरे बॉस ने मुझे उस हिसाब से प्रमोशंस नहीं दी, मेरी मैम ने मेरे को उस हिसाब से मार्क्स नहीं दिए. तो जो हमारी थिंकिंग है विच इज अफेक्टिंग हाउ मच वी थिंक वी हैव एंड वी डिजर्व, उसमें जो गैप है दैट इज कॉल्ड डेप्रिवेशन. पॉवर्टी होती है एक्चुअल लैक ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, नॉट रिलेटिव. ओके, तो पॉवर्टी इज द एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर अ लिविंग and is thus somewhat objectively defined. अब आप देखोगे कि हमारे यहाँ भी BPL, that is below poverty line जो है, that is जो है हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसकी कट ऑफ पॉइंट है 8 लाख पर एनम. अगर आपकी इससे कम इनकम है देन यू कैन अप्लाई फॉर, यू कैन इशू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट एंड यू कैन गेट फाइनेंशियल हेल्प इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिजर्वेशन इन जॉब्स. ठीक है, तो दैट इज अ वेरी सेट कट ऑफ. लेकिन डिप्राइव्ड आप कितने भी अमीर हो आप तब भी फील कर सकते हो. मे बी द अंबानी चिल्ड्रन ऑल्सो फील डिप्राइव्ड ऑफ एम्बिशन इन देयर लाइफ, या फिर उनकी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो दे कैन ऑल्सो फील डिप्राइव्ड. ओके, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल. लेकिन पॉवर्टी किस में है? जिसकी 8 लाख से कम की इनकम है इन इंडिया एटलीस्ट. ठीक है, तो अच्छा, पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन बोथ आर कॉमन इन द सेंस दैट दे आर लिंक्ड टू सोशल डिसएडवांटेज. ठीक है, कि कोई ना कोई डिसएडवांटेज आपको है. In society, caste system has been largely the source of social disadvantages, but poverty, irrespective of caste, has also played a role. बहुत लोग बोलते हैं ना कि हाँ जो reservation है that should be done on economic basis, but the reality is that discrimination does not have a monetary value. Someone may be actually well off and still be facing discrimination, which is why we have reservations in our institutions, which is very, very necessary. I think we'll realize this at one point in our lives. So I'm pretty sure even if someone is very rich and is has an amazing job, they can still face discrimination. So I have heard that in जैसे कास्ट सिस्टम का एग्जांपल दे रहे हैं, इन प्रोग्रेसिव ऑफिसेज एंड वेरी, जिसमें कि एक महीने की सैलरी ही 50-60,000 per month है, उससे ज्यादा है सब एम्प्लॉयज की. They are sometimes doing discriminatory practices and to lower caste people. So discrimination has nothing to do with your economically well, if you are economically well or not. It is just something that still exists. ठीक है, तो लेकिन if you are both, if you are also facing discrimination and belong to an economically weaker section, then it is a double hit. ठीक है, तो हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशंस, द पुअर हैव लो एस्पिरेशंस एंड लो अचीवमेंट मोटिवेशन. ठीक है, हाई नीड फॉर डिपेंडेंस. तो उनकी एस्पिरेशंस और अचीवमेंट मोटिवेशन ज्यादा हाई नहीं होती बिकॉज दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू अचीव एनी काइंड ऑफ वट एवर दे वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ. ठीक है, with regard to personality, the poor and deprived have low self-esteem, high anxiety and introversion. It is but natural that when economically weaker section से जो लोग हैं या people who have been discriminated against go to educational institutes or go to जो हमारी ये jobs हैं जहाँ पे they have been selected, वहां पर जाके they do not have they meet people who have been confident their entire lives because they do not have had they have not had any kind of lack of resources. So someone who has been rich or well off
फ्रॉम द स्टार्ट ऑन, जो एक अच्छे पब्लिक स्कूल में गया है, जो जिसको जब उसने जो अपने पेरेंट्स से छोटी मोटी जिद करी है उसको वो मिला है, एंड देन ही हैज सिक्योर्ड दैट जॉब, वर्सेस समवन हु हैज फेस्ड पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड देन सॉट दैट जॉब, देन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दैट जॉब. जब वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, देन ऑब्वियसली उसके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो एक पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन के लेंस से गुजरे हुए हैं, और जो दूसरे जो वेल ऑफ लोग हैं या जो अपर कास्ट सो कॉल्ड लोग हैं, वो जब वो वहां पे जाते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस उस एटलीस्ट पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन से दे आर नॉट गाइडेड बाय दोस. तो there is obviously said to be a difference in the confidence, difference in self-esteem, difference in anxiety levels, है ना. तो naturally अगर उनको लगेगा कि I'm feeling more anxious to interact with someone who is coming from a well-off background, then they will start becoming very introverted. ठीक है. So it's very actually someone, I was reading an article the other day where someone was like कि हम क्या करें कि someone who belong to an upper caste background and pretty well-off background said that हमारे circle में वो people from lower economic backgrounds do not adjust. So someone was saying that please redraw your circle. You have to be more inclusive of other people, their experiences. You have to appreciate them. You have to make them feel welcome if you come from a privileged household, है ना. So that is very important that we redraw our circular boundaries. जो हम कहते हैं ना हमारे circle में adjust करना, अपने circle की ही boundary बढ़ाइए. Make your circle more exclusive to people who have faced difficulties in their lives, because they are much stronger and better warriors than you will ever be, and you have at least been until now. ठीक है. तो that was a PSA. अब इसमें क्या है, होपलेसनेस, पावरलेसनेस, इनजस्टिस, एक्सपीरियंस ऑफ लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ये सब चीजें जो होती हैं वो हमारी पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन की गाइडेंस में हो सकती हैं. ठीक है. ऑब्वियसली वी शुड हेल्प प्रिवेंट दैट. It has also been found that intellectual functioning and performance on tasks such as classification, verbal reasoning, time perception, pictorial depth perception is lower among highly deprived compared to those who are less deprived. So, someone who is even facing nutrition shortage, ठीक है, जिसको डाइट अच्छी नहीं मिल रही, या someone who is facing जो कि खाने की क्वालिटी ऐसी खा रहे हैं कि बहुत ही it is subpar quality, then obviously जो the changes जो मैंने अभी बोले intellectual functioning and perceptual functioning के, they will be more pronounced in those people. ठीक है. So there is an unquestionable relationship between mental disorders and poverty. That is true. If you belong to a lower socioeconomic section, then the chances of someone getting mental disorder is higher. The chances of someone reporting a mental disorder is lower. The chances of someone affording the treatment for a mental disorder is lower. तो आप ये मत सोचो कि वो उनके कोई इनबिल्ट डेफिशिएंसी है इसलिए उनको मेंटल डिसऑर्डर ज्यादा हो रहे हैं. ऐसा नहीं है. वो जिस एरिया में रहते हैं, जिस बैकग्राउंड में रहते हैं, देन हम लोग जैसे अगर इफ आई एम दैट पर्सन, देन मैं जिस एरिया में रह रही हूँ, दैट एरिया इज नॉट प्रमोटिंग कि मैं रिपोर्ट करूँ अपना मेंटल डिसऑर्डर. माई पेरेंट्स प्रॉब्ली डोंट हैव इनफ मनी टू गेट माई ट्रीटमेंट डन इफ आई हैव अ मेंटल डिसऑर्डर. I probably do not have the resources and education to know that even in the first place कि I have a mental disorder. कि अगर मुझे डिप्रेसिव सिम्टम्स या मैनिक सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है कि ये डिप्रेशन है और मेनिया है और इस टाइप का एक डिसऑर्डर भी हुआ करता है. That's why mostly when you interact with clients who belong to lower socioeconomic section, they always say मैम इनको भूत प्रेत है या माता है या कोई प्रॉब्लम है, वो पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे होते. तो फर्स्ट स्टेप of a psychologist is to psycho-educate the patient. मतलब बताना कि actually there is a disorder जो ऐसा ऐसा होता है, ये इस चीज से ठीक होगा, आप प्लीज encourage कीजिए. And obviously hats off to the government hospitals in India which are providing very low cost treatments or in a lot of places free treatment for poor people. So it's very good. You must visit and see कि what the government is doing. It's very good. ठीक है. अब हम थोड़े से causes कर लेते हैं poverty के. तो first of all, some people think that the poor people are responsible for their poverty. According to this view, they lack the ability and motivation to put in effort, make use of available opportunities in general. Such a view about the poor is rather negative and does not help them in, making themselves better. A lot of rich people think that कि जो गरीब है वो तो अपनी वजह से गरीब है, बिकॉज इनको ही नहीं आता रिसोर्सेज को यूज करना. एक्चुअली नहीं, उनको एजुकेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास मनी नहीं है. जिस तरीके का लाइफ एक्सपीरियंस एंड मनी आपका रहा है उनके पास नहीं है. तो दैट्स व्हाई दो सिचुएशनल फैक्टर्स एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत होगा मे बी इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन सम पीपल. दिस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड. वो तो रिच पीपल में भी देयर आर लॉट्स ऑफ रिच पीपल हु डू नॉट हैव द इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू सक्सीड. सो व्हाट, सिमिलरली एरर रेट तो सेम ही है poor people में, बट ऐसा नहीं है कि being poor makes you sort of any kind of bias towards कि नहीं मैं तो काम नहीं करूंगा.
That's absolutely wrong. This view is absolutely wrong. 100%. Anybody saying so lacks empathy. 100%. And most probably belongs to a higher socioeconomic section. Okay, so they should really check what they are saying or whether they are lacking the empathy. अच्छा, अब होता है belief system, way of life in which they are brought up. That is the cause of poverty. ये actually it's a pretty important factor. For example, in a lot of poor households, it is said that लड़कियों को इतने आगे तक पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट दैट एजुकेटेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन गर्ल चाइल्ड. तो इसीलिए जो हमारे जो गवर्नमेंट है, दे आर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारे इतने सारे मूवमेंट्स हैं, दे आर ट्राइंग टू एजुकेट देम इनटू एजुकेटिंग देयर गर्ल्स. बिकॉज अगर वो एजुकेट होंगी, दे विल वर्क. अगर वो वर्क करेंगी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए, उनको बताओ कि आपके लिए रिजर्वेशन है, आपके लिए ये सब है, तो दैट विल इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन एंड इन टर्न वो अपने बच्चे को हमेशा पढ़ाएंगी. फॉर्चुनेटली द एरिया इन विच आई लिव, एवरी डोमेस्टिक हेल्प जो हमारे एरिया के आसपास हैं, दे आर द लास्ट जनरेशन ऑफ डोमेस्टिक हेल्प दैट इज कमिंग टू अ हाउस. उनके जो जितने भी बच्चे हैं, सम ऑफ देम हैव डन मास्टर्स डिग्रीज, बैचलर्स डिग्रीज, कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में है. सो इट इज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी इट कि जो हमारे डोमेस्टिक हेल्प वाली आंटी हैं, वो लास्ट जनरेशन है. दे आर ऑल्सो डूइंग इट बिकॉज दे हैव डन इट देयर होल लाइफ एंड उनके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लिख के दे आर मूविंग फॉरवर्ड. सो दिस इज द आइडियोलॉजी दिस इज द बिलीफ सिस्टम वी नीड इन ऑर्डर टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ पॉवर्टी. Okay, economic, social and political factors account for poverty. Because of discrimination, certain sections of the society are denied opportunity. Exactly. So if you belong to a certain caste where you have been discriminated against, then your life experiences, your confidence level, your access to motivation to access services, facilities available to you will be definitely different. ठीक है. Geographical region obviously ये हो सकता है कैन बी कंट्रोल्ड. तो कई कई जगह में रहने वाले क्योंकि अब जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मिडिल ईस्ट फॉर एग्जांपल, जो हमारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, दोज आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ऑयल रिजर्व्स, है ना, जो कि दे आर वेरी वेरी वेल, आई मीन वो ऑयल रिजर्व्स जो हैं, दे कॉस्ट सो मच इन द इंटरनेशनल मार्केट कि उनको ज्योग्राफिकली ऐसी लोकेशन मिल गई है कि अमेजिंग वो हो गया है उनका. दे कैन नॉट बी पुअर पीपल बिकॉज दे विल सेल द ऑयल. ठीक है. तो इसी तरीके से अगर आप किसी ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में रह रहे हो जहां डेजर्ट है या ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, जहां पे आप क्रॉप फार्मिंग भी नहीं कर सकते, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके ज्योग्राफिकल रीजन से खत्म हो रहे हैं, तो आपकी पॉवर्टी में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा. जैसे मैं आपको बताया ना मिडिल ईस्ट का एग्जाम्पल, वो ऑयल रिजर्व्स में बैठे हुए हैं, तो सवाल ही नहीं है कि वो पॉवर्टी से दे विल एटलीस्ट द पीपल हु हैव कंट्रोल ऑन द ऑयल रिजर्व्स. या अगर कोई फॉर इंस्टेंस पंजाब में है वर्सेस अगर कोई लेट्स से एक डेजर्ट एरिया में है ना, तो वहां पे कम से कम फार्मिंग का ऑप्शन है. फार्मिंग से रिलेटेड कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप वो ले सकते हो. गवर्नमेंट हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड इंसेंटिव्स फॉर फार्मर्स, तो वो आप ले सकते हो. ठीक है. बट इफ यू आर इन अ डेजर्ट एरिया, आप अगर वहां पर हो, तो इट्स डिफिकल्ट कि आप बाकी की अपॉर्चुनिटीज आपको दूसरी वाली ढूंढनी पड़ेगी. ठीक है. पॉवर्टी साइकिल आ जाता है. इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पॉवर्टी दैट एक्सप्लेन्स व्हाई पॉवर्टी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. जैसे मैं आपको बता रही थी कि लैक ऑफ एजुकेशन, ये बहुत ही एक कॉमन फैक्टर है जो पॉवर्टी के साथ साथ आता है. तो अगर आप यू डोंट हैव इनफ एजुकेशन टू नो दैट यू शुड नॉट हैव मोर देन 2 kids, तो आपके ज्यादा बच्चे हो जाएंगे. ज्यादा बच्चे होंगे तो उनको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो उनमें से लेट्स से 2 ही पढ़ेंगे. ठीक है. अगर आपके 6 बच्चे उनमें से 2 पढ़ गए तो चलो वो तो ठीक हो गए, बट बाकी के 4 विल स्टिल रिमेन पुअर. फिर वो भी अपने, अगर उन्होंने भी लैक ऑफ एजुकेशन से ज्यादा बच्चे कर लिए, तो द पॉपुलेशन विल कीप इंक्रीजिंग एंड पॉपुलेशन ऑफ द पुअर पीपल विल कीप इंक्रीजिंग. तो ये जो चीजें हैं, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको बताएं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए. आप दीज आर द वेज बाय विच यू कैन नॉट यू कैन स्टॉप प्रेगनेंसीज एंड ऑल. सो ये हमारा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक द साइकिल. ठीक है. ऑल्सो आइडियोलॉजिकल साइकिल भी कि यू एजुकेट योर किड्स, दे विल वर्क, तो पॉवर्टी आपका एक साइकिल टूट जाएगा. आप अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाओगे, उनको भी काम पे लगा दोगे डोमेस्टिक हेल्प की, तो वो लोग भी उतना ही एक लाइफ टाइम में कमाएंगे जितना आपने कमाया है. देन उनके बच्चे भी उतना ही कमाएंगे. वर्सेस अगर आपने एक बार उनको इन्वेस्ट करके उन पे एजुकेट कर दिया, दे विल प्रोबेबली गो फॉर गवर्नमेंट जॉब और एनी काइंड ऑफ प्राइवेट जॉब, देन दे कैन एक्चुअली अर्न मच मोर देन देयर पेरेंट्स हैव. ठीक है. सो अब हम आते हैं मेजर्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब पॉवर्टी खत्म करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. सो लेट्स गेट ऑन टू इट क्विकली.
ब्रेकिंग द पॉवर्टी साइकिल, जैसे मैंने आपको बताया एजुकेशन के एग्जाम्पल से, और दूसरा मैंने आपको बताया पॉपुलेशन कंट्रोल के एग्जाम्पल से, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ ब्लेम फॉर देयर पॉवर्टी, हाँ, तो ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो बट ब्लेम मत करो कि तुम अपनी वजह से तुम कभी सक्सीड ही नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट बट इफ यू डाई पुअर इट इज। तो ये वाला जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके विच द गवर्नमेंट इज डूइंग, इंप्रूविंग द मेंटल हेल्थ, so obviously providing enough mental health facilities for free, which India is actually I think very well succeeding at. तो empowering the poor, उनको education देना, अंत्योदय, ठीक है, और the last person in the society, the poorest most disadvantaged, has helped a large section of the poor to get uplifted to a better economic condition than they experienced earlier, ठीक है। अंत्योदय programs में भी उनको हम help कर सकते हैं। ओके, ग्रामीण बैंक, जो कम्युनिटी बैंक्स होते हैं, इन सब चीजों से भी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट मेन, जो हमारी एक सॉर्ट ऑफ मेन तो नहीं है बट सब हेडिंग ही है, बट इट्स प्रीटी मेन इन द सेंस कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी डिफरेंट ऑल्सो। इट इज दैट ऑफ अग्रेशन, वायलेंस एंड पीस, ठीक है। तो अब हम करते हैं अग्रेशन। अग्रेशन क्या होता है? बाय वन पर्सन दैट इंटेंड टू कॉज हार्म टू अनदर पर्सन। एक बंदा जो दूसरे को हार्म पहुंचाने की इंटेंट रखता है, मतलब वॉन्ट्स टू हार्म अनदर पर्सन, ठीक है, तो इसकी चाह है, दैट इज कॉल्ड अग्रेसिव पर्सन और अग्रेसिव बिहेवियर, द बिहेवियर दे आर एग्जिबिटिंग, ठीक है। फोर्सफुल डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर टुवर्ड्स अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज वायलेंस। जैसे कि अगर आपने अपनी एक डेस्क तोड़ दी तो दैट इज वायलेंस, ठीक है। फोर्सफुल आपने इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, थप्पड़ मार दिया किसी को, दैट इज वायलेंस, ठीक है। Aggressive behavior involves the intention to harm or injure another person, whereas violence may or may not involve such an intention. हाँ, तो मतलब okay, so aggressive behavior it is intention, but violence may or may not be. I'm trying to think of an example. Yeah, so probably aggressive behavior will be, as I said before, कि थप्पड़ मार दिया because you are intending to harm another person. वायलेंस में जैसे कोई क्राउड वायलेंस आप ले लो कि स्टैम्पीड हो गया है ना, तो दैट इज वायलेंस की किसी कॉज की वजह से यू नॉट इंटेंडिंग टू हार्म सम अदर पर्सन बट यू डिड। ओके, सो हॉस्टाइल एग्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ एंगर टुवर्ड्स द टारगेट विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग हिम और हर। हाँ, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, थप्पड़ मारना। कॉजेस ऑफ एग्रेशन कहते हैं इनबॉर्न टेंडेंसी। सम पीपल हैव द इनबॉर्न टेंडेंसी टू बी एग्रेसिव। यूजुअली आपने देखा होगा जिनके पेरेंट्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, अग्रेशन का थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ जेनेटिक कंपोनेंट। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, it could be triggered by that. So certain parts of the brain that play a role. हाँ, I have read a lot of papers on aggression. बहुत रिसर्च है साइकोलॉजी में। If you want to go read, click on Google Scholar और आप वहाँ पे aggression टाइप करो, आपको एक से एक पेपर्स मिलेंगे। चाइल्ड रेयरिंग, द वे एन इंडिविजुअल इज ब्रॉट अप। अगर पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज है, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा फिजिकली मारा है, पीटा है ना, देन दे बिकम मोर अग्रेसिव। इट इज डेफिनेटली साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन हमने पढ़ी है, फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस क्लास 11 में, दैट फ्रस्ट्रेशन कॉजेज अग्रेशन, ठीक है। मतलब अगर आपकी कोई भी नीड या गोल ब्लॉक हो रहा है तो उसको अचीव करने के लिए आप यू विल बिहेव वेरी अग्रेसिवली। जैसे आई थिंक आई गिव यू एन एग्जांपल आल्सो कि I was walking in my room and I was going towards my study desk, so that was my goal, and my bed ka thoda sa side was out, so I did not realize that it was out. My mom had kept my clothes and I stubbed my toe in it, so it's very painful when you do that. So I got so angry at the bed, I actually kicked it really hard. So that is a good example of frustration aggression hypothesis. I was going to the I was going to my desk, I got blocked by this stupid bed and I kicked it because I wanted to intend harm on it, ठीक है। So अच्छा, weaker person is unlikely or unable to react to aggression. The phenomenon is called displacement. For example, poor bed shelf, I kicked it but was not able to respond to my aggression. So this is called displacement. मतलब मैंने अपने एंगर मेरा जो था मैंने उस पर निकाल दिया। एंगर मेरा था कि मेरा टो स्टब हो गया है ना, लेकिन निकाला मैंने किस पे? बेचारे मेरे बेड पे। ओके, सो दिस कैन ऑल्सो बी डन ऑन ह्यूमन बींग्स, डू नॉट ट्राई एंड आई डू नॉट कंडोन इट। सो ये होता है बहुत बार, लेकिन कि अगर especially on pets people do this. I read this paper the other day when they were discussing intimate partner violence. जो लोग अपने spouse को मारते पीटते हैं, they also sometimes will kick their dogs or their cats, अपना anger displace करने के लिए, कि अगर बीवी पे गुस्सा आ रहा था तो they kick their cat. So that is very very bad and obviously it is a crime. So yeah,
should be reported. ठीक है. अच्छा, situational factors may also lead to aggression. For example, learning. ठीक है. The result of learning an expression or of an inborn tendency. ठीक है. अगर आपने कोई aggressive act किया और आपके parents ने उसको reward कर दिया, then you will think that you can do it again. That is direct reinforcement. For example, I mean, I have not seen this directly, but yes, probably a good example would be कि अगर someone is kicking the, मैंने देखा है वैसे कई लोगों में कि हाँ actually कि टीवी चल रहा है, उसमें the child is banging the remote, ठीक है, again and again it is being aggressive towards the remote and the parent will not intervene or they will say बताओ देखो कितना naughty बच्चा है हमारा, he is banging the remote. So if you are being reinforced for being aggressive, in fact I have seen some examples where children will also lightly, not very harshly, but lightly slap their mothers when they are kids, and the mother will not call it out, or the mother will reinforce it कि अरे ये तो बड़ा प्यारा है, देखो मुझे हल्के से थप्पड़ मार देता है. So that is actually very harmful. It is a completely एक red flag का जो फोटो है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए. If your child is doing such a thing, please उसको टोको. ठीक है. तो anger provoking action हो सकता है. ठीक है. अगर किसी ने गाली दे दी, थ्रेट, रोड रेज में ऐसा बहुत होता है कि किसी की गलती है, उस बात पे लड़ाई हो गई और मार पिटाई हो गई. ठीक है. ऑब्जर्विंग एन अग्रेसिव मॉडल, जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट देखा था हमने, कि अगर आपके फादर मदर बहुत अग्रेसिव इंडिविजुअल्स हैं, मारपीट करते हैं, देन इट विल बी, आप उसको देख के भी सीख सकते हो, बच्चे भी सीख जाते हैं. ठीक है. एंगर प्रोवोकिंग एक्शंस मैंने बता दिया. फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी, वही जैसे मैं जा रही थी डेस्क पे, आई किक्ड माय पुअर बेड. ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स, वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल. अमेरिका में देयर वाज दिस स्टडी जो गन लीगल करने को बोलते हैं उनके लिए, कि जो वहां के बच्चे हैं उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया वेयर दे वर प्रोवोक्ड फर्स्ट. ठीक है. एक एंगर प्रोवोकिंग उनको वीडियो दिखाया गया था, एंड आई थिंक दे वर मेड टू प्ले सम सॉर्ट ऑफ गेम दैट वाज प्रोवोकिंग देयर एंगर. उसके बाद उनके सामने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे कि एक बैडमिंटन रैकेट इन वन कंडीशन, एंड अनदर कंडीशन उनके सामने रख दी गन, टॉय गन ऑब्वियसली. ठीक है. एंड इन द अग्रेसिव, दोनों ने ही वो बैडमिंटन और टॉय उठा के उससे अपना गुस्सा निकाला. बट यू कैन इमेजिन कि बैडमिंटन रैकेट से नॉट मच हार्म कैन बी इन्फ्लिक्टेड, बट इफ यू हैव द एक्सेस टू अ गन एंड लाइसेंस टू यूज अ गन, then definitely a lot of harm, a lot of you can commit genocide, you can commit all sorts of you can commit all sorts of violent actions against the society. ठीक है. अच्छा, personality factors play a big role. In fact, there is a disorder called personality antisocial personality disorder, जिसमें aggressive tendencies बहुत high होती हैं. ठीक है. Cultural factors, हाँ, जैसे कि अगर हमारे यहाँ तो ऐसा कम ही है, बट हाँ, इन सर्टन सेक्शंस ऑफ इंडिया, यू कैन से, इन सर्टन सेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, बॉयज का अग्रेसिव बिहेवियर इतनी इंटेंसिटी से उसको कर्ब नहीं किया जाता जितने गर्ल्स का अग्रेसिव बिहेवियर किया जाता है. सो इफ अ गाय इज शाउटिंग, यू हैव सीन कबीर सिंह, राइट? ओके, सो कबीर सिंह इज अ क्लासिक एग्जाम्पल कि इफ द गाय इज बीइंग अग्रेसिव एंड बीइंग वेरी, ऑब्वियसली इट वाज, उसको भी लोगों ने बहुत गालियां दी थी, बट द पॉइंट इज कि इफ अ वुमन वाज डूइंग इट, देन द गाली वुड बी इवन मोर. सो इन सर्टन कल्चरल फैक्टर्स, सर्टन जेंडर रोल्स, ये सारे जो होते हैं, बॉयज इफ दे आर अग्रेसिव इट इज मोर एक्सेप्टेबल देन इफ गर्ल्स आर अग्रेसिव. सो दीज फैक्टर्स कुड प्ले अ रोल. ठीक है. दैट्स व्हाई ही हैड अ हैप्पी एंडिंग. सो रिड्यूसिंग अग्रेशन एंड वायलेंस. अब हम आते हैं कि कैसे इन चीजों को कंट्रोल करा जाए. ठीक है. विच इज द नेक्स्ट सब हेडिंग ही है. ठीक है. बट वन ऑफ आवर लास्ट हेडिंग्स. सो सबसे पहले हम पॉवर्टी एंड इनजस्टिस को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना. अगर कोई देख रहे हो कि इमिटेट कर रहा है, अगेन एज आई सेड, कि कोई बच्चा अपनी मदर को अगर हल्का सा भी मार रहा है तो उसी वक्त उसको टोकना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक द चेन ऑफ अग्रेशन एंड इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीस. वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग आवर कंट्री शुड लर्न इज एंगर मैनेजमेंट. ठीक है. अगर किसी पे गुस्सा आया है, कंस्ट्रक्टिव वेज टू एक्सप्रेस योर एंगर, जैसे कि 2 मिनट बैठ जाना और उसके बाद सोचना कि किस तरीके से पोलाइटली मैं उसको अपना एंगर कम्युनिकेट कर सकता हूं, या फिर गोइंग फॉर अ रन. इट इज द बेस्ट वे टू मैनेज योर एंगर. बहुत गुस्सा आ रहा है, गो फॉर अ रन, 30 मिनट्स तक भागो, उसके बाद वापस आ जाओ और फिर एकदम टॉक लाइक अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारा फाइनल टॉपिक, दैट इज दैट ऑफ हेल्थ. तो वेरियस हेल्थ आउटकम्स आर नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ डिजीज बट ऑब्वियसली हाउ वी थिंक एंड बिहेव. अब हेल्थ का तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया कोरोना वायरस में, है ना, कि 4 चीजें होती हैं: स्लीप, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप हेल्थ, डाइट, एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ आपकी,
ये 4 चीजें जो हैं स्ट्रेस लेवल्स, वो दैट विल डिटर्मिन योर इम्यून सिस्टम। बाकी आपको जितना भी कोरोनिल खाना है या जो भी करना है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, वो एक सप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन डाइट, स्लीप जो है आपकी, जो आपके स्ट्रेस लेवल्स हैं, जो ये सब चीजें हैं ना, ये एक्चुअली आपका इम्यून सिस्टम इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो जो हमारी फैक्टर्स एसोसिएटेड विद वेलबींग एंड फिटनेस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निशंस, द वे यू थिंक, बिलीव इट और नॉट, अफेक्ट्स योर वेलबींग एंड फिटनेस। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, इट विल शो इन योर फेस, इट विल शो इन योर वेलबींग ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे बढ़िया बात है कि आप अपने उससे अपना पॉजिटिव थिंकिंग आउटलुक रखें। ठीक है, behaviors, strong evidence that behaviors we engage in our lifestyle, for example exercise is a behavior, है ना। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उससे आपकी वेलबींग और फिटनेस जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, मतलब जो आपका कल्चर है इंडियन सोसाइटी में, जैसे मेडिकल एडवाइस बाय अ फीमेल इज ऑफन डिलेड फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है, दे आर लेस वैल्यूड बिकॉज ऑफ द बिलीव दैट दे आर हार्डी। या सो बेसिकली जैसे हमारा सुसाइड रेट है फॉर मेल्स, इट्स वेरी कंसर्निंग। ठीक है, तो दैट इज 100% a social cultural factor, because men के लिए as I was saying ना कि the stereotype is कि they will be more aggressive। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आदमी तो aggressive होते हैं। दूसरी चीज, if a male is showing emotional outlet वो कर रहे हैं, if a man is crying, if a man is showing any kind of emotional reaction, then they are thought to be as weak, which is not true, which is why the probability of reporting mental disorders, especially depression in men, is much lower than that of women, which is why the suicide rate is much higher. So it's very important to balance these kind of things. ठीक है, अच्छा, अब हम फाइनली एक टॉपिक कर लेते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन बिहेवियर। दिस इज अ वेरी मतलब थोड़ा सा अलग से है ये टॉपिक, बट नो प्रॉब्लम, विल डू इट। इसमें क्या है, ऑब्वियसली अगर आप थोड़े टीवी पे जो आता है उससे वेरी वल्नरेबल। अच्छा, रीसेंट टाइम्स में न्यूज चैनल्स ने ये बात प्रूव कर दी है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, even adults are very vulnerable to the impact of television on them. So again, मैंने example बहुत बार use किया है कि watch certain kind of news channels, you are more likely to have a certain kind of ideology. ठीक है, तो बच्चे तो जो देख रहे हैं उनका impact है ही, even adults बहुत impact है। ठीक है, इसको आप ठीक करने के लिए you can inculcate the habit of reading, writing and outdoor activities. That's very good. Instead of sitting in front of the TV or your laptop, especially if you have that kind of lifestyle, then go out and do something else, at least for 1 hour. ठीक है, अच्छा, टेलीविजन वॉचिंग मे बी एन इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। तो अगर आप बहुत देर तक टीवी देख रहे हो या से आईज वीक, कुछ लोग कहते हैं कि वीक हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी आपकी इधर उधर हो जाती है। वॉचिंग वायलेंस ऑन टीवी, जो कि इट सेल्स अ लॉट आजकल, जो हमारी नेटफ्लिक्स सीरीज, प्राइम वीडियो सीरीज, इन पे भी बिकॉज थोड़ा सा सेंसरिंग कम है तो वायलेंस बहुत ग्रेट एक्सटेंट में दिखाया जाता है। ठीक है, सो दैट इज ऑब्वियसली इफेक्टिंग द वे वी थिंक। ठीक है, अच्छा, कैथारसिस की यहाँ पे बात करी गई है कि कैथारसिस मतलब कि आपको किसी चीज पे बहुत वॉचिंग वायलेंस में रिड्यूस द नेचुरल अग्रेसिव टेंडेंसी ऑफ द व्यूअर, सॉरी में इंक्रीज what is bottled up gets an outlet, thus cleans. Okay, so इसमें क्या है कि they have described it कि अगर आपके अंदर बहुत सारा वायलेंस भरा हुआ है, आपने उसको बॉटल अप किया हुआ है, देन अगर आपने एक पिलो को पीट पीट के 10 मिनट तक वो वायलेंस निकाल दिया तो वो निकल जाएगा। बट लेट मी टेल यू, recent scientific evidence has proved that catharsis ऐसा कुछ नहीं होता। In fact, if you inflict violence on let's say a pillow, then your violent tendencies will increase. So catharsis does not work. आप इसको प्लीज यू कैन रीड इट ऑन एनी काइंड ऑफ वेल पब्लिश्ड जर्नल, मैंने बहुत सारे पेपर्स भी पढ़े हैं इस पे। कैथारसिस डज नॉट वर्क, बट स्टिल कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड जो है हमारा टीवी वॉचिंग का, न्यूमरस प्रोडक्ट्स आर एडवर्टाइज्ड, इट इज वेरी नेचुरल फॉर व्यूअर्स टू गेट कैरिड अवे। ठीक है, तो वेरी एक्साइटिंग, naptol.com आप कभी देखना, इट इज माई ऑन टाटा स्काई, इट इज द डिफॉल्ट चैनल व्हेन यू स्विच ऑन द टीवी दैट कम्स। Literally, I am so gullible. I want to buy everything that is on Naptol. So that is the main aim of TV watching, कि they want to sell. So we have to be careful about that as well. Okay. So in this chapter we discussed a lot of मतलब इधर उधर की बहुत सारी चीजें, environmental impact से लेके social impact, so many other things. So I hope that poverty, discrimination, how to curb poverty and discrimination, how to ये जो है हमारा कैथारसिस का कॉन्सेप्ट, हमारा ये aggression, violence, all sorts of things. So I hope you were able to understand what I taught in this chapter, and do subscribe to the channel. Thank you for watching my video.